Friends, welcome to our channel Mayuk Education, and this is Ketan Shrivastava here. Today we are going to discuss the answer in detail of Prashnottari 2.0, the national quiz on constitutional law and modern India history. So here we go. So basically the quiz is divided into two parts. Section 1 and section 2, that is multiple choice question, and section 2 is short answer question. So let's begin with section 1, that is multiple choice question. Question number 1 is, in which year Pakistan as a separate state was demanded by Muslim League? So क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि डिमांड कब हुई पाकिस्तान एज अ सेपरेट स्टेट की मुस्लिम लीग द्वारा. सो इसमें क्वेश्चन में जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर बी. इन्हीं दोनों में डाउट होता है जनरली लोगों को. सो व्हाट हैपेंड इन 1946? इन 1946 मुस्लिम मेजॉरिटी अग्रीड टू द आइडिया ऑफ पाकिस्तान. मतलब 1946 में डिमांड नहीं हुई थी पाकिस्तान की, पाकिस्तान के आइडिया को लोगों ने एक्सेप्ट करा था जो मुस्लिम मेजॉरिटी थे ब्रिटिश इंडिया की. सो द करेक्ट आंसर इज 1940. 1940 में पाकिस्तान की डिमांड की गई थी एज ए सेपरेट स्टेट बाय मुस्लिम लीग. मुस्लिम लीग 1906 में स्टैब्लिश हुई थी ढाका में, प्रेजेंट टाइम ढाका इन बांग्लादेश है, और डिसॉल्व हो गई थी 14 अगस्त 1947 को. ठीक है, yes. So let's move on to the question number 2. Yeah, answer is 1942. Question number 2 is, her uncle Bhagwati Chara founded the Odisha branch of Communist Party of India, and at the age of 8 in the year 1939 she had been mercilessly beaten up by British police for pulling down the Union Jack as well as pasting handwritten anti-British Raj posters on the wall of Cuttack. 9th June, the birthday of this famous personality has been installed as National Daughters Day dash दिवस. तो नेम द पर्सनालिटी. सो बेसिकली यहाँ पर हम किसी की बात कर रहे हैं जिस पर थोड़े थोड़े हिंट्स हमने ऑलरेडी अंडरलाइन कर लिए हैं कि समवन इज फ्रॉम उड़ीसा, और उनके बर्थडे को एज अ नेशनल डॉटर्स डे के नाम से भी हम सेलिब्रेट करते हैं. तो यार दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन और द करेक्ट आंसर इज नंदिनी सतपथी. नंदिनी सतपथी, जिसको नहीं पता है वो मैं बता दूं कि नंदिनी सतपथी इज अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा, एंड शी ऑल्सो वर्कड विथ इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी. एंड लूट देने के लिए नेशनल डॉटर्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है. Nandini means daughter and Divas means day. That is why this concept has been emerged, and this day 9 June is celebrated as a National Daughters Day in the memory of Nandini Satpathy. Okay, yeah. So moving on to the question number 3. Okay, this question is a something LOD3 type question. Let's discuss this question. As the ruling party, the Dash exercises power through the dictator of proletariat. The naming convention of this more diverse as the international movement was fragmented due to Sino-Soviet split in 1960s. Those who sided with China and Albania in their criticism of the Soviet leadership often added words like revolutionary or Marxist-Leninist to distinguish themselves from pro-Soviet party. This party also was not associated with the Constituent Assembly of India. ठीक है, बहुत बड़ी कहानी लिखी है इस पैराग्राफ में, बट जनरली इस क्वेश्चन में पार्टिसिपेंट्स कंफ्यूज हो गए बिकॉज इस वर्ड से मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट, लोगों ने मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट पढ़ करके ऑप्शन नंबर 4 को टिक कर दिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, विच इज अ रॉन्ग आंसर. वाई रॉन्ग आंसर? बिकॉज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से सेपरेट हुई थी 1964 में. उनके आइडियोलॉजीज नहीं मैच कर रहे थे, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सेपरेट हुई थी कम्युनिस्ट ऑफ पार्टी से 1964 से. ओके, एंड ऑप्शन नंबर 1 इज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट आंसर बिकॉज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्ट थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की व्हेन द असेंबली वाज इन वर्क with the draft of the constitution of India. National People's Party is also not a correct answer. Why? Because National People's Party अभी recently established हुई है by P.A. Sangma. It is a party of P.A. Sangma और ये 2012 में established हुई है, और इसे पार्टी का दर्जा है वो अभी 7 जून 2019 को दिया गया है.
सो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, विच इज अ करेक्ट आंसर. ओके, सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4. In the Constituent Assembly, Dash emphasizes the term fraternity and states that sense of common brotherhood to all Indians and is the principle which gives unity and solidarity to social life. Who said these lines? Who said these lines while dealing with the Constitution of India? ओके, सो फ्रैटर्निटी जनरली फाउंड होता है प्रियम्बल में, एज प्रियम्बल में जो टर्म है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी. सो व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग कि हु इज द पर्सन हु एम्फसाइज दिस पर्टिकुलर टर्म in the Constituent Assembly? So the answer is B.R. Ambedkar, as B.R. Ambedkar is the only person who's like, you know, who enshrined three important words, that is equality, liberty and fraternity. अच्छा, फ्रेटर्निटी का क्वेश्चन एग्जाम्स में इसलिए पूछा जाता है बिकॉज ओरिजिनली द टर्म फ्रेटर्निटी वाज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन which was given by the Nehru. So when, like on 21st September 1948, while submitting the draft of the constitution before the president, then Rajendra Prasad wrote that the committee had adopted a new clause about fraternity. सो उसे इम्फसाइज ही किया था बी आर अम्बेडकर ने. जैसा कि हमने पहले ही बोला, बी आर अम्बेडकर ने 3 वर्ड पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था, वो था इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी. आज भी वो हमारे प्रियम्बल में पाए जाते हैं. ओके, सो करेक्ट आंसर इज बी आर अम्बेडकर. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following observations on fundamental right was made by the Supreme Court in landmark ruling K.S. Puttaswamy versus Union of India? A very landmark judgment, deals with right to privacy. Okay, let's see the options. First point, there is no overlap between rights enumerated under Article 19 and Article 21 of the Constitution of India. No, this is not a correct point. So option number 2, the constitutional values embodied under every article of Part 3 of Constitution of India animates the interpretation of the other. Exactly, this is the main point, this is the point here. Option B is the correct answer. Okay, so moving on to the next question. The idea of Constituent Assembly to frame a constitution for India was first mooted by. Okay, so जो आइडिया था इसमें लोग ऑप्शन ढूंढते हैं एम एन रॉय, बट एम एन रॉय नहीं होगा. और यहाँ पर था फर्स्ट मूटेड बाय, मतलब फर्स्ट कौन था जो इसे लेकर के आया था कॉन्स्टिट्यूट की हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए अपने देश का लॉ बनाने के लिए. तो द करेक्ट आंसर इज स्वराज पार्टी इन 1928. ठीक है, स्वराज पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड एज द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी विच फॉर्म्ड इन द ईयर ऑफ 1923. So moving on to the question number 7. The legislature can only. अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को ये भी डाउट हो रहा था, क्वेश्चंस वर बिट लेंदी एंड बिट डिफिकल्ट, बट नो, नॉट एवरी क्वेश्चन इज अ बिट लेंदी. एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट द कम्युनिस्ट पार्टी वाज, या आई एग्री दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज कम अंडर द एम्बिट ऑफ LOD 3, बट नॉट एवरी. जो भी इस टाइप का टफ क्वेश्चन होगा मैं उसे स्पेसिफिकली बोलूँगा, बाकी ट्रिक्स क्या है उसको हम देख लेते हैं. अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. ये देखने में लंबा लग रहा है, बट यू हैव टू use the presence of mind in order to decode the question for correct answer. Let's see what this point is saying. Okay, so the legislature can only make laws within its legislative competence. The legislative competence may be limited by specific list entries or be restricted by other constitutional limitation and prohibitions. It cannot overstep the area of the legislative capability. A simple rule is followed in this regard, which is to find out in the legislating body had the power to legislate directly. If not, then the legislature cannot legislate indirectly. So basically, ऑप्शन से पता चल रहा है कि we are something डिस्कसिंग जो कॉन्स्टिट्यूशनल का एक इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रीन है, और ये बहुत फेमस डॉक्ट्रीन है. अगर हम इसको पढ़ते हैं, you cannot do indirectly what you cannot do directly, or what cannot be done directly cannot be done directly. ऐसा एक ही है. The correct answer is doctrine of color-label legislation. So here is the hint. बाकी की कहानी लिखी थी. इस क्वेश्चन से आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को पुट कर सकते थे. Okay, so moving on to the question number 8.
She was India's first woman chief minister serving as the head of the Uttar Pradesh government from 1963 to 1967. अब इस क्वेश्चन में बाकी आपको जाना ही नहीं है. If you know who is the first woman chief minister of India, the first woman chief minister of India is Sucheta Kripalani. That is the answer only. बाकी की पैरा सिर्फ कहानी थी. So इस तरह से हिंट थे जो आपको यूज करने थे. Okay, moving on to the question number 9. Which state cabinet cleared a draft ordinance that seeks to reserve 75% of the jobs in private enterprises for local residents to address the aspects of unemployment of the local population on a priority basis? So in month of July, Haryana Legislative Assembly drafted the ordinance that seeks to reserve 75% of the job in private enterprises. ये basically current affairs का question था और इस पर थोड़े बहुत ट्विटर कैंपेन और वगैरह वगैरह भी थोड़े बहुत चले थे, तो इसलिए ये थोड़ा सा न्यूज़ में था. बाकी दिस इज अ करंट अफेयर्स क्वेश्चन. ठीक है, तो हरियाणा इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following statement is incorrect about the National Capital Territory of India? So question is asking incorrect. ठीक है, first, in the case of difference of opinion between the Lieutenant Governor and his ministers on any matter, the Lieutenant Governor shall refer it to the President for decision. President. 2. If any provision of law made by the Legislative Assembly with respect to any matter is repugnant to any provision of a law made by Parliament with respect to the matter, that law made by Parliament shall prevail. Okay. Third, the Chief Minister and other ministers shall hold office during the pleasure of Lieutenant Governor. Fourth, the Union Territory of Delhi shall be called the NCT of Delhi. Okay, so by prima facie, only option 3 is not correct, because the Chief Minister and the other minister shall hold office during the pleasure of the President, not Lieutenant Government. It is mentioned under section 2 subclause 5 of 69th Amendment 1991, that which is clearly defined है कि Chief Minister or other minister shall hold office during the pleasure of the President. और बाकी जो तीनों पॉइंट है ये इसमें डिफाइंड है. ठीक है, तो the correct answer is only 3. Option number 3, only 3. Moving on to the next question. The model of economic emergency was taken from which country? This is a very simple but tricky question, because लोग कंफ्यूज हो गए. लोगों ने सिर्फ इमरजेंसी को देख करके जर्मनी टिक कर दिया, बट जर्मनी इज नॉट द राइट आंसर, बिकॉज क्वेश्चन में पूछा है इकोनॉमिक इमरजेंसी. सो करेक्ट आंसर इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. He or she is entitled to audience in all the courts of the country and take part in the proceeding of the parliament and its committee without the right of the vote. Okay, so वापस से इसमें पैरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, हमें पहली लाइन में ही थोड़ा बहुत हिंट मिल गया है कि there is a one person who is entitled to audience in all courts of the country and take part in the proceeding of the parliament as well. And option is which constitutional post here we are talking about. So by applying the algorithm of eliminating the option, Solicitor General कट हो गया, Pro Tem Speaker कट हो गया because he is not entitled to audience in all courts of the country, Chairman of the Law Commission कट हो गया. There is only person is Attorney General of India who is entitled to audience in all the courts of the country and take part in the proceedings of the Parliament as well. And this is the constitutional post. Okay, so yeah, moving on to the next question. Under which provision of the Constitution of India it is the fundamental duty of every citizen of India to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activities so that the nation constantly rises to higher level of endeavor and achievement. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और ये तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 51A सब क्लॉज J. तो yeah, this is the correct answer. Okay, moving on to the question number 14. Which of the following former presidents have not been awarded Bharat Ratna? Sarvapalli Radhakrishnan, K.R. Narayan, Zakir Hussain and Dr. V.V. Giri. So here in the option only K.R. Narayan is the person जिन्हें भारत रत्न नहीं मिला है, बाकी सभी को भारत रत्न
दिया हुआ है, तो ओनली बी मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो मूविंग ऑन to the question number 15. So 15, recently a union minister emphasized the need to include all reservation related laws in the dash schedule of the constitution so that they are shielded from judicial review. So basically इसको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, बट इसमें हमने एक बहुत बड़ा हिंट दिया है कि विच इज द ओनली schedule in the Constitution of India which was shielded from judicial review. So only 9th schedule है जो judicial review के परव्यू में नहीं आता है. बाकी तो अगर आपको 12 schedules पता है तो आप इस क्वेश्चन को easily कर ले जाते. तो so moving on to the next question. Protection from double jeopardy means. Okay, so ये again tricky question है. No person shall be prosecuted and punished, and no person shall be prosecuted or punished. No person shall be prosecuted for the same offence more than once. Only prosecuted. No person shall be punished for the same offence more than once. Okay, but जब डबल jeopardy का प्रोविजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो इसमें क्लियरली मेंशन है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड, और की कंडीशन नहीं है, एंड की कंडीशन है. एंड पनिश मीन्स इसको प्रोसिक्यूट भी नहीं किया जा सकता दोबारा और पनिश भी नहीं किया जा सकता दोबारा फॉर द सेम ऑफेंस. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 seats were reserved in the Lok Sabha, that is the lower house of the Parliament of India. यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि we are talking for Anglo-Indian. ओके, Anglo-Indian पीपल्स की हम बात कर रहे हैं बिकॉज उनकी ही 2 seats रिजर्व होती है लोकसभा में. आगे मेंशन भी है, सॉरी फॉर द मेंबर ऑफ Anglo-Indian Committee. These 2 members were nominated by the President of India on the advice of GOI, means Government of India. Now the question is, which amendment of the Indian Constitution has abolished the nomination of Anglo-Indians to the Lok Sabha and Legislative Assembly? So the answer is 104th Amendment Act. So basically जब भी पैरा टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो what the expert is advising to the students who are preparing for the competitive exam, before reading the whole paragraph, you should read what the question is asking. Okay, so इससे हमें क्या होता है, जब हम बाकी का पैरा पढ़ रहे होते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि हमें उस पैराग्राफ को पढ़ते हुए किस डायरेक्शन में ले जाना है. So like the question is asking which amendment of the Indian Constitution has abolished the nomination. अब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें फटाक से पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है या लीव कर देना है, क्योंकि फिर हमें यही हो जाएगा अगर हमें अमेंडमेंट ही नहीं पता है तो हमें फिर पूरा पैराग्राफ पढ़ करके टाइम क्यों वेस्ट करना. ओके, सो ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसी माइंडसेट होना चाहिए स्टूडेंट्स का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कॉम्पीट करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The Constituent Assembly appointed a total of 22 members to deal with different tasks of constitution making. Out of these, 8 were major committees and the other were minor committees. Under the same, the Constituent Assembly appointed an advisory committee on fundamental rights on 24 January 1947 under the chairmanship. So simple सा question है. This question is asking who is the chairman of advisory committee of the Constituent Assembly. So the answer is Sardar Vallabhbhai Patel. Okay, moving on to the next question. Question number 19. In which case Supreme Court held that the Parliament cannot amend the fundamental rights through constitutional amendment. So basically simple है, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और मिनर्वा मिल्स नहीं, ऑल ऑफ द अबव पॉसिबल नहीं है, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दो राइजन नहीं, क्योंकि गोलकनाथ में ही सबसे पहली बार ये हेल्ड हुआ था कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन, आपको पता है, आता है कि नहीं है, आता है तो अटेम्प्ट करना है, नहीं आता है तो छोड़ देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following points are correct about Government of Indian Act 1858? Okay, so this is a basically a theoretical question. Means if अगर आपको 1858 Government of India Act के बारे में नहीं पता है तो शायद आप attempt नहीं कर पाओ, but let's discuss. Point number 1. Indians were allowed in the law making process. Okay. Point number 2. Process of decentralization by restoring legislative power to Bombay and Madras.
A new office had been set up, Secretary of the State. Revived the Office of Board of Control set up under Pitt India Act 1784. Abolished the Office of Courts of Directors set up under Regulating Act 1773. So in the answer 3 and 5 are correct because a new office had been set up, Secretary of the State. 1858 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट आया था डायरेक्टली फ्रॉम क्राउन, जिसे क्राउन ने डायरेक्टली लेकर के आए थे। और इसमें क्या हुआ था 1858 में, आफ्टर द 1857 रिवॉल्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो हमारी अबॉलिश कर दी गई थी क्राउन के द्वारा, क्योंकि 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें इनकी मोनोपोली को एक्सटेंड नहीं किया गया था, भी जो 20 साल तक के लिए पहले से एक्सटेंड करते हुए आ रहे थे चार्टर एक्ट 1833 में, चार्टर एक्ट 1813 में, बट 53 में एक्सटेंड नहीं किया गया था। और आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया था। अब इसमें क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो ऑप्शन है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू बने हुए थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अबॉलिश कर दिया गया तो यार ये ऑफिस भी अबॉलिश कर दिया जाएगा, ठीक है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पोस्ट थी वो लंदन के पार्लियामेंट में बैठती थी और इंडिया को रिप्रेजेंट करती थी। मीन्स ये कैसे चलता था कि देयर वाज अ वॉइसराय, जो हमारा एक पोस्ट था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का, वो पता ही होगा कि वो वॉइसराय से रिप्लेस हो गया था। तो वॉइसराय किसे रिपोर्ट करेगा, वो करेगा एसओएस को, एसओएस मीन्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, जो कि लंदन के पार्लियामेंट में बैठा है। और एसओएस जो है वो रिप्रेजेंट करेगा इंडिया को कैबिनेट में ब्रिटेन की। तो या पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 5 1858 के उससे सही है। अच्छा, इंडियन वाज अलाउड इन लॉ मेकिंग प्रोसेस, ये शुरू हुआ था 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में ऐसा मतलब ये चीज स्टार्ट हुई थी। और ओके, एंड रिवाइव द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल सेटअप अंडर पिट्स इंडिया एक्ट, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो ये ऑफिस था ये भी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के लिए बना था। किस लिए? टू क्रॉस चेक द एक्टिविटी ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्राउन के लोग थे। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं रह गई तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या कहेगा? तो फोर्थ पॉइंट अगर ऐसा होता कि एबॉलिश द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो शायद ये काउंट हो जाता, बट ऑप्शन 4 इज सेइंग रिवाइव द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following features were borrowed from Government of Indian Act 1935 in our Constitution? Okay, 1935 का जो Government of Indian Act था वो बहुत important था हमारे Constitution के context में, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो थी वो adopt की गई थी Government of Indian Act 1935 से। Let's see the point. A. Federal scheme. B. Concept of republic. C. Electoral college. D. Office of Governor. एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल। ओके, सो इसमें हम अगर हम देखते हैं पहले कौन सा पॉइंट जो है हम लिटरली मतलब फटाक से हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, तो वह है ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक जो था वो हमारा आया था 1950 में। 1950 में क्यों आया था? व्हेन आवर फर्स्ट रिपब्लिक हेड वाज अपॉइंटेड, और हु इज द फर्स्ट रिपब्लिक हेड इज द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। सो रिपब्लिक पोस्ट जो थी वो हमारी 1950 में आई थी, तो ये ऑप्शन हमारा फटाक से एलिमिनेट हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर या 2 ऑप्शन हमारे फटाक से एलिमिनेट हो गए। अब बचते हैं ए सी डी ई एंड ए डी ई। लेट्स सी, ठीक है, तो ए सी डी और ए डी ई मीन्स हमें सी को ही बस देखना है कि सी क्या है। तो इलेक्टोरल कॉलेज जो था हमारा ये पहले ही आ गया था। इसकी शुरुआत जो थी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स और मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड्स में ही इसका जिक्र देखने को मिल जाता है। तो 1935 तो बहुत आगे का था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी भी कट जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन ए, डी एंड ई। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। फेडरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ 1935, ऑलरेडी गिवन है 1935 की बात हो रही है। रेसिड्यूरी पावर्स वर गिवन टू whom?
ओके, सो बेसिकली 1935 एक्ट में बहुत सारी चीजें स्टेट लेवल मींस यूनियन लेवल और प्रोविंशियल लेवल दोनों पे स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। अगर किसी ने पढ़ा है पूरी एक्ट्स को फॉलो किया है फ्रॉम चार्टर एक्ट 1773 टू गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, तो उसे पता होगा कि किस तरीके से डेवलपमेंट थी फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर पिट्स आया 1784, फिर चार्टर आया 1893 में, सॉरी 1793 में, फिर 1813 में नेक्स्ट चार्टर आया, फिर 1833 में नेक्स्ट चार्टर आया, फिर ऐसे 1853 में, फिर वापस से गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट पहला आया 1858 में, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1861 में। सो बेसिकली पूरी हिस्ट्री में ये जिक्र होता है कि कैसे कैसे मतलब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, फेडरल लेजिस्लेचर, गवर्नर जनरल की पोस्ट कैसे कैसे चेंज होती गई, तो और प्रोविंशियल गवर्नर कैसे बना, मतलब जो भी है। तो इसमें 1935 तक यूनियन और प्रोविंशियल लेवल पर काम बहुत अच्छे से चलने लगा था, इतनी डेवलपमेंट हो चुकी थी। और यहाँ पे पूछ रहा है कि फेडरेशन, और उस टाइम पे ज्यादातर जो एग्जीक्यूटिव पावर्स थी वो होल्ड करता था गवर्नर जनरल, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा सी, प्रोविंशियल गवर्नर और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर तो ऑटोमेटिकली ही कट जाएंगे ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है फेडरेशन, यूनियन लेवल की बात हो रही है, तो दो में ही कंफ्यूज होती थी फेडरल लेजिस्लेचर और गवर्नर जनरल। सो फेडरल लेजिस्लेचर उस टाइम पर जो है वो वर्क करती थी विद द एडवाइस ऑफ गवर्नर जनरल। सो रेसिड्यूरी पावर जो थी वो गवर्नर जनरल पर ही लाई करती थी। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज गवर्नर जनरल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Directive principles of state policy can be classified into three categories: socialistic principles, Gandhian principles, and liberal intellectual principle. Which of the following belongs to the Gandhian principle? Organization of village panchayat, equal justice and free legal aid, promotion of cooperative societies, and UCC. Okay, so simple question है, C answer, बिकॉज बाकी गांधीयन प्रिंसिपल में नहीं आते रहे। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड इज द पार्ट ऑफ सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। तो इसी तरीके से ऑप्शन नंबर ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर विच कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash was an eminent Gandhian, a freedom fighter, a social activist, and also a member of Constituent Assembly. Okay, again a big para. Let's see the hints given in this question. Eminent Gandhian. Okay, the body that framed the constitution, and she was also a member of the Constituent Assembly. अब हमें यहाँ पर ये भी देखना है कि although Constituent Assembly में सिर्फ और सिर्फ 15 वुमेन्स थी, सिर्फ 15 वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था, तो उसी में से ये एक थी। कौन थी नेक्स्ट देखते हैं। ओके, that person was imprisoned by British authority because of her participation in Gandhi-led 240 mile in Dandi March. Okay, again a big hint कि who is this person who participated in the Dandi March also, because Dandi March में वुमेन्स का सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन था। मतलब दांडी मार्च एक इकलौता मूवमेंट था जिसमें वुमेन्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इन 1934 शी वेंट टू लिव एट महात्मा गांधी ashram and took up the austere life there despite her aristocratic background and serve as Gandhi's secretaries. अब यहाँ से सीधा सीधा ऑप्शन मिल जाता है राजकुमारी अमृत कौर, because this is a factual question, not so difficult। जिस हिसाब से पार्टिसिपेंट्स की कंप्लेंट आई थी कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, बट ऐसा नहीं था। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। यू हैव टू यूज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, यू हैव टू डिकोड द फैक्ट्स, लाइक कैसे हम उसको डिकोड करके आंसर तक पहुंचते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statement: a writ of mandamus is issued by higher court to lower courts only. So यहाँ से पता चल गया, ऑप्शन पॉइंट नंबर 1 हमारा कट गया। Writ of certiorari is issued by the higher court to lower court before the proceedings are completed. No, it issued after the proceedings. Okay, so यहाँ पर हमें मिल गया like which of the statement is correct? None. Okay, moving on to the next question. Constitution of India guarantees which of the following to the state of India?
टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सोवरियनिटी, राइट टू सीट फ्रॉम यूनियन, नन. सो करेक्ट आंसर इज नन, बिकॉज इनमें से कोई भी ऑप्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी नहीं करता है, बिकॉज ये सारी चीज़ें हमें प्रोटेक्ट करनी होती है, स्टेट को प्रोटेक्ट करनी होती हैं, मतलब कैसे भी करके, ठीक है. तो ये स्टेट्स ऑफ इंडिया को गारंटी नहीं देता है कि सोवरेनिटी देना या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बनाए रखना. इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट. ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोवरेनिटी बनाए रखना, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बनाए रखना. सो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के था. ओके, सो करेक्ट आंसर इज नन. ट्रिकी क्वेश्चन था ये. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following presumption reason best justify the validity of law to hate speech? Okay, so hate speech के laws की validity को justify करने का question है. Correct answer is 2 and 4. Okay, moving on to the next question. Which part to our constitution deals with protection against self-incrimination? That is, no person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself. Self-incrimination, as we all know that self-incrimination article 20 में defined है. और इस क्वेश्चन में ये भी नहीं पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल. इस क्वेश्चन को ज़्यादा इजी बनाने के लिए पार्ट दिए हुए हैं, तो यहाँ से तो और इजी बन जाता है, बिकॉज पार्ट 3 ओनली टॉक्स अबाउट द फंडामेंटल राइट, एंड फंडामेंटल राइट जो मेंशन है वो फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 है, और सेल्फ इंक्रिमिनेशन आर्टिकल 20 में है. तो फंडामेंटल राइट का पार्ट है. ऑप्शन नंबर 4 is the correct answer for this. Okay, moving on to the next question. The act was subsequently repealed in Article 395 of the Constitution India and in Article 221 of the Constitution of Pakistan of 1956. Both the Constitution being intended to bring about greater independence for the new state. This is the main hint. यही हिंट थी, इसी से आपको क्वेश्चन डिकोड हो जाता. Which provisions acts are hereby discussed above? Sales of land, revenue areas, Judicial Officer Protection Act, Industrial Dispute Act. These are the substantial statute law. This particular act bring about a greater independence for the new state. So Indian Independence Act 1947, which was under the guidance of last Viceroy, who is Lord Mountbatten, who passed Indian Independence Act 1947, जिसमें मेंशन था कि इंडिया और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट बन रही हैं until जब तक उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन ना बन जाए, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को एबॉलिश कर दिया गया था जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गया था. ओके, सो ऊपर सिर्फ कहानी थी, बट यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है. तो बस हमें बस दिमाग खोल करके आंसर्स को अटेम्प्ट करना है, नॉट सो डिफिकल्ट. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर वर ओनली 15 वुमेन इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. हमने पहले भी इस चीज को डिस्कस करा था. Out of total 389 members, which of the following women were part of the Constituent Assembly? राजकुमारी अमृत कौर का हम श्योर हो चुके हैं, ठीक है, हमने पहले ही अभी इसको डिस्कस कर लिया था. तो ऑप्शन नंबर बी तो होना ही होना है, ठीक है. अब एक ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया. विजय लक्ष्मी पंडित, यस, शी वाज देयर. दुर्गाबाई देशमुख, शी वाज आल्सो देयर, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर 4 ए बी एंड सी इज करेक्ट. सो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाते हैं क्योंकि कभी कभी थीम हो जाती है वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन रिलेटेड लॉज से, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछना भी हो जाता है. तो 15 ही वुमेन्स थी, तो इट्स नॉट सो डिफिकल्ट टू मेमोराइज द नेम ऑफ 15 वुमेन. सो या, इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Through which act monopoly of East India Company was completely ended? Again a tricky question. Option number 1 is Charter Act 1793, 33, 61, Council Act और 13. Okay, so basically इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की. ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया आई थी वो एज अ ट्रेडर आई थी, एज अ बिजनेसमैन आई थी, नॉट एज अ एडमिनिस्ट्रेटर आई थी. ओके, फिर यहाँ की कंडीशंस को देखते हुए, यहाँ का फ़ायदा उठाते हुए, आफ्टर विनिंग द 2 इम्पॉर्टेंट बैटल्स, द बैटल ऑफ प्लासी एंड द बैटल ऑफ बक्सर इन 1757 एंड 1764, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना आधिपत्य पूरी तरीके से इंडिया में जमा लिया था. ओके, सो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली
चली आ रही थी तभी से, जब रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्टार्ट किया था, और 1773 में पहला चार्टर इन लोगों ने लेकर के आया था, जिसको हम रेगुलेटिंग कहते हैं. बट you know, there is a famous tagline with great powers comes great responsibilities too. बट ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया और उनमें काफ़ी ज़्यादा करप्शंस वगैरह आने लगे थे, तो इसके लिए क्राउन ने काफ़ी ज़्यादा स्टेप लिए थे. What happened in 19th century में after the rise of नेपोलियन, जो फ्रेंच के अलाइज थे, जो नेपोलियन के स्टेट के अलाइज थे, उन लोगों ने ब्रिटिशर्स के बिजनेसमैन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप जो है अब हमारे कंट्री में बिजनेस नहीं कर सकते. तो जो बिजनेसमैन थे उनके पास एक ही ऑप्शन बचा कि कहाँ जाएं. तो उन्होंने क्राउन से डिमांड करी कि सर अब ईस्ट इंडिया कंपनी को की मोनोपोली को ख़त्म करना चाहिए और हमें भी ट्रेड करना है, और इंडिया उस टाइम पे बहुत रिच कंट्री थी, तो हमें भी इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन दी जाए. तो वहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया चार्टर एक्ट 1830 में, जब पहला स्टेप लिया क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली ख़त्म करने के लिए. इन्होंने यहाँ पर चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को पहली बार फर्स्ट टाइम ख़त्म कर दिया, बट 2 ट्रेड के लिए छोड़ दिया. वो ट्रेड कौन से थे? ट्रेड विथ चाइना और शुगर. ठीक है, ये 2 ट्रेड जो थे वो इन लोगों ने छोड़ दिए थे. मतलब इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को बरकरार रखा था. तो चार्टर एक्ट में शुरुआत हुई थी, बट कंप्लीटली एंड नहीं हुआ था. और क्वेश्चन पूछ रहा है कंप्लीट एंड कब हुआ था. सो द करेक्ट आंसर इज चार्टर एक्ट 1833. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आर्टिकल 360 सब क्लॉज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. बाकी पैरा पढ़ने की ही जरूरत नहीं है. इफ यू नो व्हाट आर्टिकल 366 सब क्लॉज 2, दिस इज एंग्लो इंडियन. ओके, not so lengthy. ठीक है, moving on to the next question. These members enjoy all powers, privileges and immunities available to an elected members of parliament. Elected member of parliament. They take part in the proceedings of the house. Okay. They however are not entitled to vote in the election of the president. Okay. यहाँ से अब हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं. So the correct answer is 12 nominated members, because your next hint is under section 75A of the Representation of the People Act, which requires the elected member to do so within 90 days. तो ऐसा सिर्फ 12 nominated members of राज्यसभा के लिए ही किया जाता है. Moving on to the next question. The distribution of power between center and state as in the Constitution of India is based on the which of the following plans. Again, हमने पहले भी डिस्कस किया था, सेंटर एंड स्टेट का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से इमर्ज हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 में. बाकी में सिर्फ बातें चल रही हैं क्या. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैज कोटेड स्पेसिफिकली अबाउट द ऑफिसर दैट this shall be the most important officer under the purview of Constitution of India. Name the post. Comptroller Auditor General is the correct answer. So Comptroller Auditor General, जिसे मतलब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मींस पीएससी का फ्रेंड्स भी माना जाता है. ठीक है, पीएससी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट. और भीमराव अम्बेडकर ने बहुत एम्फसाइज करके बोला था. अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स जो दी हुई है उसे पढ़ेंगे तो ऐसे आंसर्स आप लोगों को मिल जाएंगे. ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, ये सारे क्वेश्चन इनडायरेक्ट हैं, और इस तरह की इनडायरेक्ट क्वेश्चन बहुत जगह देखने को मिलते हैं. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Dash is a colossal name in the clique of women freedom fighters of our country. She has been a pivot along with the Nehrus in the national movement. Okay, being in the forefront of the non-cooperation movement of 1921. This is the hint. LOT3 type question. ये difficult है question, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता है कि किसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कौन फोरफ्रंट पर थी. ठीक है, और ऐसे बहुत सारे वुमेन्स फ्रीडम फाइटर्स हुए थे, तो लोगों को नाम रिकॉल नहीं रहते. ओके, लेट्स सी. शी ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन इलाहाबाद एंड पिक्ड शॉप सेलिंग फॉरेन क्लॉथ्स एंड लिक्वर. She was also arrested on 2 occasions for involvement in independence struggle activities along with Sarojini Naidu, Nehru's mother, and other women in the Indian freedom struggle. Okay, so the answer is Kamala Kaur Nehru.
ठीक है। या सो इसमें मतलब थोड़ा सा फैक्चुअल यहाँ पर अगर आपको पता है कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के फोरफ्रंट पे कौन थे तो शायद आप कर लेते हैं, बट या दिस कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ LOD 3। तो ये 4th क्वेश्चन था जो हमारा LOD 3 के परव्यू में आया है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला कौर नेहरू। In the context of Indian history, the principle of diarchy refers to, yeah. So again ये सारे हमने NCERT क्लास 9-10 में पढ़ा है। तो डायरकी को पहले डायरकी को पहले अबॉलिश किया गया, पहले लाया गया, फिर अबॉलिश किया गया, फिर लाया गया। तो जो इसका कॉन्सेप्ट था डायरकी का वो बेसिकली क्या था? सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू 2 हाउस, नो। इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, नो, ये तो ड्यूअल पॉलिटी में आ जाएगा, ठीक है। Having 2 seats of rulers, one in London and another in Delhi, no, बकवास ऑप्शन है ये। Division of the subjects delegated to the provinces into 2 category, exactly, because हमने पढ़ा था डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर द एक्ट ऑफ 1784, पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें COD मीन्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, और BOC में कौन था? जिसमें क्या कहते हैं, क्राउन के लोग थे। इन्होंने सब्जेक्ट्स का डिवीजन कर दिया था, जैसे कुछ मिलिट्री राइट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स डिवीजन हो गई थी, कुछ राइट्स COD को मिल गए थे, कुछ राइट्स BOC को मिल गए थे। तो क्या हुआ था? सब्जेक्ट्स का डिवीजन हुआ था, प्रोविंस मतलब एक पर्टिकुलर प्रोविंसेस में, तो वो प्रोविंस थी बंगाल। Yeah, so the correct answer is option number 4, division of the subjects delegated to the provinces into 2 categories. Okay. So moving on to the next question. New education policy 2020 aims to increase the अच्छा, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं समझने के लिए अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसीज पढ़ते हैं, बट इसमें था ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 26 से 50% हो जाएगी 2000, तो वो कब तक होगी? इसको 2035 इज द करेक्ट आंसर। ये टिपिकली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था और इसमें कई सारी चीज़ें हैं। इसमें GDP की भी बात हुई है, तो GDP के लिए 2030 बोला गया था, और भी कई तरह की बात हुई है। तो उसमें किसी में 2050 था, किसी में 2040 था, बट देखने वाली बात थी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात हो रही है यहाँ पर, तो उसके लिए ऑप्शन होगा 2035। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following acts introduced the principle of constitutional autocracy? Okay. So basically autocracy is a system of government in which supreme political power to direct all the activities of the state. ठीक है, तो ये चीज जो थी, चीज आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 से, जिसमें बात हुई थी कि सारी सुप्रीम जो पॉलिटिकल पावर हैं, जो भी एक्टिविटीज हैं, वो एक जगह से हैंडल होगी। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे जो ऑप्शन 1909 में बात चल रही थी, 1919 में बात चल रही थी, 1892 में तो उस टाइम पे तो इलेक्शन का भी कॉन्सेप्ट नहीं मर्ज हुआ था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी तो दूर की बात है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। As we know that our constitution is the longest hand-written constitution. In the words, what is the name of the person who wrote our original constitution? प्रेम बिहारी नारायण राय का डायरेक्ट आंसर है। इसमें दो ही चीज़ होगी, या तो आपको आएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमारा MCQ का सेगमेंट जो है ख़त्म होता है। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द सेक्शन 2, दैट इज शॉर्ट टाइप आंसर, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन एज वी सी सिर्फ 4 से 5 ऐसे क्वेश्चंस थे विच कम्स अंडर द परव्यू ऑफ LOD 3। बाकी पैरा में थे, तो उसके ऊपर ही कुछ कुछ ऑप्शंस तो हमें पहले ही लाइन में मिल गए थे, जैसा कि सुचेता कृपलानी का आंसर था, आपको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। जैसा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आंसर था, जिसमें आपको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। जैसा कि आर्टिकल 366(2) था, जिसमें आपको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो इस तरीके में आपको यही चीज़ होगी, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। आपको पहली दूसरी लाइन में पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को हमें छोड़ना है या इस क्वेश्चन को हमें रीड करना है। ओके, या सो लेट्स बिगिन विद द सेक्शन 2, दैट इज शॉर्ट टाइप आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, who was the Chief Justice of India when the Constitution Bench described the basic structure of the Constitution for the first time? The answer is not so simple. It's a tricky question because
बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ होगा तो क्योंकि उस टाइम पे पीएन भगवती का बहुत ज़्यादा बोलबाला था तो जस्टिस पीएन भगवती रहे होंगे, बट नो, जस्टिस पीएन भगवती इज नॉट द करेक्ट आंसर, जस्टिस एएम सिकरी वाज द करेक्ट आंसर। तो लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं पीएन भगवती एंड सिकरी में, सो आप मत कंफ्यूज होना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी, ओके लेट्स सी, belonging to the Ghadar party, best known for his assassination in London of a British official. Next hint, okay, the former lieutenant governor of the Punjab in India. A district in his name is Uttarakhand, was named after him to pay homage. Next hint, in 1995 by then Mayawati government. Name the person. तो इस क्वेश्चन में 3 हिंट दिए हुए हैं, बट ठीक है, द आंसर इज उधम सिंह। रिवॉल्यूशनरी था गदर पार्टी का, ब्रिटिश ऑफिशियल में असैसिनेशन के लिए जाने जाते थे, बट बहुत सारे लोगों को लगता है कि इन्होंने जनरल डायर का असैसिनेशन किया था जो एसोसिएटेड थे जलियांवाला बाग इंसिडेंट से, बट कुछ हिस्ट्री की बुक्स ऐसा भी कहती हैं कि नो, दैट ऑफिसर इज डिफरेंट जिसको उधम सिंह ने मारा था। ठीक है, इसमें कंट्रोवर्सी बनी हुई है, हमें उस पर नहीं जाना है, हमें हमारा क्वेश्चन भी ऐसा कुछ पूछा नहीं है, तो हमें स्टिक रहना है। तो उत्तराखंड में जो नाम है वो है उधम नगर, उधम सिंह के नाम पर मायावती गवर्नमेंट द्वारा दिया गया था। द करेक्ट आंसर इज उधम सिंह। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, literally meaning for the time being the holder of this post is the first time to be sworn in immediately after election. Okay, let's see. Usual parliamentary convention denotes that the occupant of this post be the senior most. अब यहाँ से आपको आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि senior most जो होते हैं वो होते हैं प्रोटेम स्पीकर। हमारे जो पोस्ट होती है वो सीनियर मोस्ट पोस्ट होती है पार्लियामेंट की, और ही इज द फर्स्ट मेंबर टू बी स्worn इन इमीडिएटली आफ्टर इलेक्शन टू द लोकसभा। तो अगर आप यहाँ से डिकोड नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ से तो डिकोड आप कर ही लेंगे। एंड हु इज द करंट प्रोटेम स्पीकर इज वीरेंद्र कुमार ऑफ द 17th लोकसभा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड द वर्ड डैश। ओके यार, ये मॉडरेटेड क्वेश्चन है, नॉट सो इजी बट नॉट सो डिफिकल्ट टू। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कुछ वर्ड ऐड किए गए थे आफ्टर वर्ड्स और यूनियन इन आर्टिकल 19(1)(c). तो अगर किसी ने आर्टिकल 19 को ढंग से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन वो आराम से निकाल लेगा, उसे डिकोड कर लेगा। एंड इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 43B इन द DPSP, दैट इज वाई, एंड एडेड द पार्ट 9B। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। हमने पढ़ा था प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आल्सो गांधीयन प्रिंसिपल का में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड आल्सो मेंशन द ईयर व्हेन इट वाज डिक्लेयर्ड। हमने इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट रखे हैं। अगर किसी ने न्यू दिल्ली 1931 लगाया है या किसी ने दिल्ली 1911 लगाया है, दोनों तरह के आंसर सही हैं। बट हाँ, इस क्वेश्चन में देखने वाली बात है कि अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड आल्सो व्हेन न्यू दिल्ली एज अ कैपिटल ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड, सो इसका आंसर होगा 1931। इनॉग्रेशन जो हुआ था न्यू दिल्ली एज अ कैपिटल ऑफ इंडिया वो 1931 में हुआ था, और 1911 में कैपिटल ट्रांसफर हुई थी फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, in the year of 1893 dash went to South Africa. This is a very easy part. First part तो बहुत आसान है यार, कि 1893 में कौन साउथ अफ्रीका गया था। सो द आंसर इज महात्मा गांधी, by an invitation of Dada Abdullah, a Muslim businessman. Regarding his case, after reaching Africa, he saw the racism is done by Britishers to local people. Afterwards, he founded Dash Indian Congress. बहुत लोगों ने इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस लगाया है, बट इंडियन नेशनल कांग्रेस गांधी जी के अफ्रीका जाने से 9 साल पहले, 10 साल पहले ही खुल चुकी थी। INC को 1884 में ही खोल दिया गया था। AO ह्यूम खोला था फर्स्ट सेशन में, WC बैनर्जी प्रेसिडेंट थे। तो यहाँ पर INC कैसे हो सकता है? ठीक है, सो द आंसर इज नाटाल इंडियन कांग्रेस। नाटाल इंडियन कांग्रेस के नाम से महात्मा गांधी ने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक पार्टी खोली थी जिसका मेन मोटिव था रेसिज्म को काउंटर करना, क्योंकि वहाँ पर ब्लैक एंड वाइट का बहुत ज़्यादा रेसिज्म था। इसी के चलते गांधी जी ने अपना फर्स्ट सत्याग्रह
ये भी कभी कभी क्वेश्चन में आता है। 1906 में चलाया था अफ्रीका में, ठीक है, और इंडिया में 1916 में, तो ऐसा भी है। तो फर्स्ट पार्ट तो वेरी इजी, बहुत इजी था, सेकंड पार्ट थोड़ा सा मॉडरेटेड में था। ओके, moving on to the next question. Dash is one of the prominent leader of INC, born in Parsi family. First hint, he is also remembered as the first to demand Swaraj. यहाँ पे क्वेश्चन खत्म भाई यहाँ पे क्वेश्चन खत्म। अगर आपको पता है कि स्वराज को सबसे पहली बार किसने डिमांड करी थी किस सेशन में, तो आप इसका क्वेश्चन में आप सीधे या तो आंसर लिखोगे या तो स्किप करोगे, ठीक है। तो द आंसर इज दादा भाई नेरोजी, दादा भाई नेरोजी। पहला पार्ट क्लियर। नाउ नेक्स्ट सी द अदर पार्ट, ठीक है। ऑल्सो गेट द टाइटल ऑफ डैश एज ए लिव्ड टिल द मैच्योर ओल्ड एज ऑफ 91। अब यहाँ से दादा भाई नेरोजी के साथ हमें सिर्फ एक ही टाइटल ध्यान में आता है, वो होता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय द डैश एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एबॉलिश्ड एंड द एडमिनिस्ट्रेशन वाज डायरेक्टली रूल्ड बाय ब्रिटिश क्राउन। तो यहाँ पर है ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रूल कब आया था? आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के बाद जो पहला एक्ट आया था वो आया था 1858 में, जिसको हम कहते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इट्स अ वेरी इजी आंसर, ठीक है। और बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए इसमें। GOI 1935 किसी ने लगाया है, किसी ने चार्टर एक्ट 1853 लगाया है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन की शुरुआत तब से हुई थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी एबॉलिश हुई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी एबॉलिश कब हुई थी? आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। और यहाँ इसी से फिर आगे क्वेश्चन है, द सेड एक्ट आल्सो रिप्लेस द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विद वायसरॉय ऑफ इंडिया। ये तो बहुत ईजी था, अगर किसी ने पढ़ा है तो वो डायरेक्टली इसे लिख देगा, नॉट सो डिफिकल्ट। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Name the landmark case which states equality is dynamic concept with many aspects and it cannot be grabbed, cabined and confined within the traditional and doctrine limits. So this question is specifically for the law students. अगर law student है और आपने कॉन्स्टिट्यूशन ढंग से पढ़ी है, आपने आर्टिकल 14 ढंग से पढ़ा है, तो आपको ज़्यादा इसमें दिमाग माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन का आंसर इज EP रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, वेरी लैंडमार्क जजमेंट। So moving on to the last question. Through Government of Indian Act 1919, demand of dash was made firstly. अच्छा, कुछ ऐसा था जो पहली बार डिमांड हो रहा है। And a strong recommendation by the Lee Commission. बस यहाँ पर ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया, इसमें आगे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कि अगर ली, आपको पता है कि ली कमीशन से किस चीज की स्टार्ट हुई थी, तो आप ये क्वेश्चन आराम से डिकोड कर ले जाओगे। तो ली कमीशन से आया था हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको 1924 में मतलब बनाया गया था, और ये था मतलब इसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 के साथ पढ़ते हैं। और फिर आगे पूछा है हमारा एक एक्स डिकोड हो गया। आगे पूछा है पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड स्पेसिफिकली विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट दिस पब्लिक सर्विस कमीशन और UPSC। सो आर्टिकल 315 इज द करेक्ट आंसर। यस या गाइस, सो इतना ही था इस क्विज कंपटीशन में। 40 क्वेश्चंस MCQ से और 10 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप आंसर्स थे। बाकी अब अलविदा लेने का समय आ गया है। मयूख एजुकेशन को फॉलो करने के लिए दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं, और आप सर्च भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन पर मयूख एजुकेशन, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जा करके डेली अपडेट्स के लिए हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।